नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद, एनसीआर, दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी नामे चैनल पर आपका स्वागत है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय वीडियो चैनल and share the video as much as possible so as to propagate and share our issues, views and news of retirees to all sections of societies, all sections of political parties, all sections of retirees, to motivate them, mobilize them for further actions by retiree organizations and bank pension activists so as they may be इन मूवमेंट, आंदोलित रहें, वो सभी रिटायरी कार्यों के लिए फॉलो करें। वंस अगेन सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर द वीडियो टू so as it may go to government and political parties, so as government may consider for positive actions on our issues and views and news. लाइक एंड कमेंट माय वीडियो। मित्रों, एक मेरे पास आई है, एक पोस्ट आई है श्री कुमार बी, स्टेट सेक्रेटरी केरला आईबा पार्क से। उन्होंने अच्छा विश्लेषण जारी किया और ये विश्लेषण मैं आपको बता देता हूँ, आपके सम्मुख रख रहा हूँ। द कंसेप्ट ऑफ पे आउट कॉस्ट एंड फंडिंग कॉस्ट कैन बी understood from the provision of rupees 22,000 crores IBA asked for the improvement in family pension। उन्होंने अपना एक इस इशू पर अच्छा विश्लेषण दिया है, मैं आपको बता देता हूँ। The actual cost of improvement in family pension was reported to be rupees 1,320 crores, 1320 crore for a year, but rupees 22,000 crores was provisioned and it was amortized over 5 years. Rupees 22,000 crores investment at 6% rate will give rupees 1,320 crores. Thus rupees 1,320 crores is the payout cost and 22,000 crores is the funding cost, ये इन्होंने बताया। But when there is enough surplus every year in the yield plus yearly statutory provisions, this additional funding only unwarrantedly inflates the corpus more than necessary. Adopting the same analogy, the pension updation, if the actual payout is rupees 3,280 crores, 3,280 crores, IBA may demand and funding of rupees 54,667 crores, 54,667 crore, considering the same 6% yield accepted in family pension case. The issue to be examined is whether the additional fundings are essential for permitting updation of pension. Let us look at the position of pension corpus of all banks, data made available through RTI Act intervention. 31st March 2019 corpus is 3,19,970 crores, 3,19,970 crores. 31st March 2021 3,22,402 crores, 3,22,402 crore. 31 March 2022 rupees 3,57,891 crores, 3,57,851 crores। ये है पोजीशन मार्च 22 की।
we can see a robust growth. Now look at the receipts and payments in the pension corpus funds. Data is for all PSBs including SBI for the year 21-22. Figures as below. Income from investment of funds rupees 21,496 crores, 21,496 crore. Income from statutory provisions made by banks rupees 39,937 crores, 39,937 crore. The total receipt is rupees 61,433 crores, 433 crore. Pension payment rupees 24,409 crores, 24,409 crores. Net surplus 37,024 crores, रुपीज 37,024 करोड़ सरप्लस जाता है खाते में. Against this position, the requirement for pension updation is estimated at rupees 3,280 crores, which is less than 10% of the surplus. Surplus से 10% कम है, 3,280 crores. Further, as these was practically no recruitments for almost 15 years from 1985. Now recruitments from 2024 to 2025 will be very negligible, which will accelerate the growth of the corpus. The fund will be available only to those who joined banks till 31 March 2010, who, चूंकि बाद में तो NPS लागू हो चुकी थी, who we can assume will retire by 2050 and may live up to 2072 as per the presently accepted life expectancy, as the pension payments are made only out of part of the investment income. The principle of corpus, which will be used compared to the present one, will remain in fact. Ultimately, after the last person who joined up to 31 March 2010 leaves this world, who will be the बेनिफिशियरी? कौन बेनिफिशियरी होगा जो ये बचेगा? सारा तो बच जाएगा और बहुत मोटा 3,58,000 करोड़ के करीब है, और उसमें ये डालेंगे कुछ और बचता ही जा रहा है, सरप्लस है उसमें वो 37,000 कुछ करोड़ पर 37,024 करोड़. I think my above attempt will give a transparent position of the financial viability of the pension updation and also the necessity or otherwise of huge funding cost. Definitely there can be and there are people who don't agree to believe this. I have gone by logic. Those who differ may have a different perception and the same, and they have every right to be so. Let us have confidence in our eminent leaders who have been able to get us important in ex gratia for pre-1986 retirees, improvement in family pension to 30% of last drawn pay without any ceiling, and latest the 100% deneutralization for pre-November 2002 retirees, which was even rejected by Supreme Court of case not supported by logic or law. Of course not supported by logic of law. All within a period of 11 years from the inception of AIBA Park. They are the people who are toiling 24/7 by 365 days, even with their health issues and also their
advanced age, there are legal experts like J.D. Sharma and Comrade S.B.C. Karunakaran, and actuarial and arithmetical experts like Comrade K.S. Rangarajan, who had provided necessary data support for several post BPS to assist Comrade K.V. Acharya and Comrade Suprit Sarkar and their team, eminent leaders with rich experience in the field. So we had not be skeptical about our achieving pension updation, which I feel will happen in the very near future. श्री कुमार बी, स्टेट सेक्रेटरी केरल यूनिट आईवा पार्क, ये उन्होंने लिखा है। अपने यूनियन के नेताओं की बड़ाई भी करनी भी चाहिए सभी को जो उनकी यूनियन के हैं तो। और उसके अलावा उन्होंने बताई है, एक स्टैटिक्स दी है और आरटीआई के अनुसार जो उन्होंने फिगर्स ली वो बताई है सब। तो ये था, ये मैंने आपको बताया। और शेष में मेरा ये कहना है कि एक तरफ हम कोर्ट में भी केस लड़ रहे हैं, पेंशन अपडेशन पर भी, स्पेशल अलाउंस पर भी, और सिंघला जी वाला केस की तारीख 1 मार्च 2024 दी गई है और लिस्ट हो गया है वो 1 मार्च 2024 को, यानी कि 2 महीने रह गए, जनवरी, फरवरी और मार्च, 2 महीने से भी एक दिन कम ही है। तो वो उसमें आ रहा है। उसमें क्या होता है, फुल डे ऑथराइज किया गया है उसमें हियरिंग के लिए। और जो भी होगा, क्योंकि वो भी 2016 से केस चल रहा है, 16 और 8 24, 8 साल हो गए। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जी ने ये भी कहा कि भाई ये डेट पर डेट नहीं होनी चाहिए। ये जो सीनियर सिटीजन्स के लिए, हम तो सीनियर सिटीजन हैं, बहुत लोग मर ही जाते हैं हमारे में से हर साल। अब सर्दियाँ आ रही हैं, देखो कुछ लोगों को हार्ट के प्रॉब्लम, बीपी वाले, अस्थमा वालों को, लंग्स प्रॉब्लम वालों को, और बोन की प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम है, और 10 तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से उन्हें दिक्कत होती है। उनका स्टमक का सिस्टम, पाचन शक्ति की कमी, क्योंकि शरीर का ह्रास होना शुरू हो जाता है 60-65 के बाद। शरीर की जो अंग हैं वो घिसने शुरू हो जाते हैं, कुछ घिस जाते हैं, कुछ घिसने शुरू हो जाते हैं, तो दिक्कतें आती हैं। तो गवर्नमेंट को ध्यान करना चाहिए, और हेल्थ स्कीम जो है हमारा, उस पर भी ध्यान करना चाहिए। और हम लगातार प्रयास में, अगर हमें किसी से, चाहे आईबीए के चेयरमैन से मिलने का टाइम मिले तो वहाँ भी मिलेंगे या बात करेंगे टेलीफोन पे या जैसे भी हो। मेल्स तो हम लिखते ही रहते हैं इन लोगों को, कल भी लिखी हैं, पहले भी लिखी हैं, पिछले महीने में 5-6 बार लिख चुके होंगे अलग अलग तरह की मेल। सब चीज़ें समझा करके लिखते हैं। वो पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, सुना है कि फोल्डर बनता है डेली मेल का, और देखते हैं वो लोग, तो देखते होंगे, तो मुझे लगता है कि देखते हैं, तो फिर उन्हें समझना चाहिए। हमने तो बड़ा डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं। एमएन राव जी जो है सेंट्रल बैंक के चेयरमैन हैं, उनको भी हमने कई दफ़ा कांटेक्ट करने की कोशिश कर ली, और उन्होंने तो फ़ोन नहीं उठाया, उनके सेक्रेटरी ने फ़ोन नहीं उठाया, कई दिन तक करा उनके सेक्रेटरी को भी हमने। और जिस एक नंबर से हमें फ़ोन आ गया, आपने हमारे चेयरमैन को क्यों कॉल किया, तो उन्हें हमने सारी डिटेल बताई, नाम वाम, बैंक का नाम सब पूछा, पर्पज और पज। बोला ठीक है अभी मीटिंग में, और हम उनको मैसेज दे देंगे। लेकिन कई दिन हो गए, कोई मैसेज नहीं उनका ना। मैंने व्हाट्सएप भी करा था उन्हें, लेकिन अभी कुछ नहीं है। लेकिन मैं तो सोचता हूँ कि अपनी बात बताऊँ, चूँकि यूएफबीयू तो कहता है कि हम तो तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव ने, उन्होंने क्या कथा वहाँ कही है हमें भी नहीं पता। जब वो नेता ही नहीं हमारे, हाफ हार्टेड हैं, वो हमारे इशू को कहाँ सेटल करेंगे। रिटायरीज से ये लोग बात नहीं करते, तो रिटायरीज का यही है, हम इनसे भी बात करने के मूड में, और फाइनेंस मिनिस्टर से भी, पीएम से अगर टाइम मिल जाए उनसे भी कर लेंगे। हम तो अपनी बात कह ही देंगे। मेल तो हम उन्हें भी करते रहते हैं, पीएम को, लोकसभा स्पीकर को, प्रेसिडेंट को, और सब लोगों को करते रहते हैं। लेटर्स भी, मैं नहीं, पता नहीं कितने एक्टिविस्ट लगे रहते हैं इस कार्य में। तो अब हमारे इशू का क्या होगा ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन ये है कि हमारा ये इशू सेटल होना चाहिए। अब गवर्नमेंट, अब तो इलेक्शन है, इलेक्शन से पहले नहीं हो सकता तो फिर कब होगा। हमने बीएमएस के जो सेक्रेटरी हैं उनसे भी वार्ता कर रखी है, मीटिंग्स भी कर रखी हैं, उनसे भी कह रखा है अपनी दुविधा, व्यथा, कथा, दर्द, पीड़ा रिटायरीज की, और सारे इशूज उनको भी लिख के देख रखे हैं। उन्हें भी कहा हमने कि आप
FM से भी बात कर लें और इनसे भी बात कर लें, IBA चेयरमैन और नेगोशिएटिंग कमेटी के चेयरमैन से, उन्होंने कितना किया है। कल भी मैसेज किए थे मैंने उन्हें। देखो आज उनके क्षेत्र से, उनके टीम में से किसी का मेरे पास फ़ोन भी आता है इस संबंध में। तो देखो क्या प्रोग्राम बनता है, जो भी होगा आपको बताया जाएगा। तो आज की बात यही है फिलहाल। धन्यवाद साथियों, नमन, सल्यूट, क्रांतिकारी अभिवादन सभी रिटायरी साथियों को, सभी रिटायरी एक्टिविस्ट साथियों को, सभी रिटायरी लीडर्स को नमन। और सभी लोग संपन्न, स्वस्थ और प्रसन्न रहें, मंगल में रहें सपरिवार। सीनियर सिटीजन हैं आप लोग, सर्दी बहुत है, इसमें ध्यान रखें अपना स्वास्थ्य का। मुझे भी इस देश में भी ठंड लग रही है। और भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत, जय सनातन समाज संस्कृति। ओम नमः शिवाय, ओम ब्रह्मा विष्णु महेश। नमन, थैंक्स। आर के त्यागी, गाजियाबाद।